नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अपडेट्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं NEET नीट के बारे में। भारत में चिकित्सा स्नातक के पाठ्यक्रमों MBBS, BDS आदि में प्रवेश पाने के लिए क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, जिसका नाम राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा नीट है। दोस्तों, अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं या नीट की परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको हमारा वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें, एप्लीकेशन हमारी आ चुकी है 6 अप्रैल 2022 को। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 15 मई 2022 है। लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट 15 मई 2022 है, मतलब आपको फॉर्म अपनी फिलअप और उसका पेमेंट 15 मई 2022 तक कर देनी है। एग्ज़ाम डेट आपकी है 17 जुलाई 2022। एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम के पहले मिल जाएगी, रिज़ल्ट आपको एग्ज़ाम के बाद ही मिलेगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल की फ़ीस है 1600, EWS और OBC की फ़ीस है 1500, SC ST और PH की फ़ीस है 900। पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू द E-चालान ऑफलाइन मोड और पे द एग्ज़ाम फ़ी थ्रू द ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग फ़ी मोड। मतलब आप अपनी फ़ी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ऑफलाइन मोड E-चालान के द्वारा भी आप दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के कुछ कोड्स होते हैं, UG कोड्स होते हैं जो कोड किए गए हैं। पहली कोड है नीट की, अ कैंडिडेट हु इज़ appearing in the qualifying examination that is 12th standard in 2022 whose result is awaited may apply and take up the said test, but he or she shall not be eligible for admission to the MBBS or BDS if he or she does not pass the qualifying examination with the required pass percentage of marks at the time of first round of counseling. NEET UG code 2. The higher secondary or secondary examination or the Indian school certificate examination which is equivalent to 10+2 higher senior secondary examination after a period of 12-year study. The last 2 years of such study comprising of physics, chemistry, biology, biotechnology, which shall include practical test in these subjects and mathematics or any other elective subjects with English at a level not less than the core course for English as prescribed by the National Council of Educational Research and Training after introduction of the 10+2+3 educational structure as recommended by the National Committee on Education. The intermediate pre-degree examination in science of an Indian university, board or other recognized examining body with physics, chemistry, biology, biotechnology, which shall include practical test in these subjects and also English as a compulsory subject. NEET UG Code 4. The pre-professional, pre-medical examination with physics, chemistry, biology, biotechnology and English after passing either the higher secondary education or the pre-university or an equivalent examination. The pre-professional, pre-medical examination shall include practical test in these subjects and also English as a compulsory subject. NEET UG Code 5. The first year of the 3 years degree course of a recognized university with physics, chemistry and biology, biotechnology including practical tests in these subjects provided the examination is a university examination and candidate has passed the earlier qualifying examination with physics, chemistry, biology, biotechnology with English at a level not less than a core course. NEET UG Code 6. BSc examination of an Indian university provided that he or she has passed the BSc examination with not less than 2 of the subject physics, chemistry, biology, botany and zoology, biotechnology and further that he or she has passed the earlier qualifying examination with physics, chemistry, biology and English. NEET UG Code 7. Any other examination which in scope and standard last 2 years of 10+2 study comprising of physics, chemistry and biology, biotechnology which shall include practical test in these subjects is found to be equivalent to the intermediate science examination of an Indian university board taking physics, chemistry and biology, biotechnology including practical tests in each of these subjects and English. इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर नीट यूजी। दोस्तों, अगर हम इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो आपको अपनी आधार कार्ड रख लेनी है। आधार कार्ड के साथ एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रखनी है 4x6 साइज़ की, जिसकी बैकग्राउंड वाइट हो। फ़ोटो के नीचे आपका नेम और फ़ोटो टेकन डेट ज़रूर लिखा होना चाहिए।
फॉर मोर डिटेल्स, आप इसके और डिटेल्स के लिए आप इसके वेबसाइट्स पर जा सकते हैं। इसकी वेबसाइट है https://examinationservices.nic.in। अब आपका फर्स्ट स्टेप ये है कि आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे। रजिस्ट्रेशन में आपको कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब आपको अपनी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वगैरह आपको अपनी फिलअप करनी है। इसके बाद आपका है आता है पासवर्ड। पासवर्ड आपको ऐसा देना है कि जो यूनिक हो, जो सबसे मिलता जुलता ना हो, और उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन देना है और इस फॉर्म को सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद आपकी अपेंडिक्स आती है। अपेंडिक्स में आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है, जिसके नीचे आपका नेम लिखा होना चाहिए और फ़ोटो टेकन डेट ज़रूर लिखा होना चाहिए। फ़ोटो की साइज़ आपकी 10 KB to 200 KB होनी चाहिए। पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो की भी साइज़ 10 KB to 200 KB होनी चाहिए। आपके लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड के फिंगर थंब इम्प्रेशन भी होने चाहिए। इस फ़ोटो की भी साइज़ आपकी 10 KB to 200 KB के भीतर होनी चाहिए। एक सिग्नेचर की फ़ोटो होना चाहिए, जिसकी साइज़ होगी आपकी 4 KB to 30 KB। अब ये रजिस्ट्रेशन पेज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म पे अगर हम जाते हैं तो उसमें बहुत सारे आपको डिटेल्स मिलेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, आधार डिटेल्स और बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले आता है आपके पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में कैंडिडेट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी, कैटेगरी, PWD कैंडिडेट है तो ये सब भी आपका इंफॉर्मेशन है, तो ये सब आपको फिलअप करना है। इसके बाद आपका आएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशंस में, जैसे कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस, फैमिली की एनुअल इनकम क्या है, माइनॉरिटी बिलोंग करते हैं यानी कंट्री ऑफ रेजिडेंस, मोड ऑफ प्रिपरेशन और डू यू इंटेंड टू वियर कस्टमरी ड्रेस कंट्ररी टू द ड्रेस कोड विथ अपीयरिंग इन इट, ये भी आपको फिलअप करना है। इसके बाद आपकी आती है फिर से सिक्योरिटी पिन। आप सिक्योरिटी पिन देकर इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एप्लीकेशन नंबर, अपने आधार कार्ड का एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, जेंडर, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ और अकॉर्डिंग टू योर आधार कार्ड आपने जो फिलअप किया है इन्फॉर्मेशन सही या नहीं है, आप इसमें से 3 ऑप्शंस में से किसी एक को टिक कर सकते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ देखनी है, नोट कि सिस्टम विल नॉट अलो यू टू चेंज नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आफ्टर आधार नंबर ऑथेंटिकेशन। प्लीज़ इंश्योर टू चेक द डिटेल्स एंड देन प्रोसीड फर्दर। उसके बाद आप सबमिट और नेक्स्ट कर सकते हैं। अप्लाई फॉर एंड एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स। अब आपको अपनी एग्ज़ाम सेंटर के डिटेल्स भरने हैं। आपने अप्लाई किया है नीट के लिए और आपका पेपर मीडियम क्या होना चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। एग्ज़ाम सेंटर आपके क्या होने चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप अपने एग्ज़ाम सेंटर्स फिलअप करेंगे। फादर के ऑक्यूपेशन ये ऑप्शनल है, पर फिर भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं। मदर की ऑक्यूपेशन, मदर की क्वालिफ़िकेशन हो गई। उसके बाद ये सब फिलअप करने के बाद आप सिक्योरिटी पिन देंगे, उसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, 10th की क्वालिफ़िकेशन सबसे पहले आपकी आती है। 10th की क्वालिफ़िकेशन आप पास स्टेटस, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, रिजल्ट मोड, रोल नंबर, कॉलेज पिन कोड, ईयर ऑफ पासिंग अपीयरिंग, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, स्कूल बोर्ड, स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस। अब 12th की आती है। 12th की भी इंफॉर्मेशन जैसे आपने 10th की फिलअप की वैसे ही 12th की भी फिलअप करेंगे। रिजल्ट, पास स्टेटस, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, टाइप ऑफ स्कूलिंग, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, रिजल्ट मोड, रोल नंबर एक्सेट्रा। उसके बाद आप अपनी सिक्योरिटी पिन कोड देंगे, उसको 7 नेक्स्ट करेंगे। अब आती है आपकी एडिशनल डिटेल्स में। एडिशनल डिटेल्स में सबसे पहले, डिड यू एवर अपीयर इन नीट यूजी एग्जामिनेशन, अगर आप अपीयर हुए हैं तो येस, नहीं हुए तो नो। प्लेस ऑफ बर्थ आपको लिखना है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट लिखना है, सिक्योरिटी पिन लिखना है, फिर 7 नेक्स्ट। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ दे देनी है और उसके बाद फिर आपकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड फिंगरप्रिंट्स, थंब इम्प्रेशंस देने हैं, सिग्नेचर्स देने हैं, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो देनी है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल हैं तो आपको अपनी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट ज़रूर देना है।
10th की सर्टिफिकेट देनी है, ये सब आपको डिटेल्स अपनी अपलोड कर देने हैं। अब आपका आता है रिव्यू पेज। आपने जो फॉर्म फिलअप किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, रिव्यू पेज आप अपना एक बार चेक कर लें, आपने डिटेल्स अपने सही फिलअप किए हैं या नहीं। कैंडिडेट नेम हो गए, फादर नेम हो गए, जो भी कुछ हो गए, आप अपने डिटेल्स को चेक कर लें, सारे पेजेस को। 10th 12th के मार्कशीट्स और 10th 12th के जो नंबर्स हैं, आप उसको सही से और बहुत ही ध्यानपूर्वक आप फिलअप करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की अब ये सब जो रिव्यू पेज है, आप इनको देख सकते हैं। एक बार आप सब कुछ अच्छे से रिव्यू कर लें। एडिशनल डिटेल्स हो गए, प्रेजेंट एड्रेस हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, सब लोकेलिटी नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। दोस्तों मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि एक बार आपकी फॉर्म अगर फिलअप हो गई तो उसके बाद दोबारा वो चेंज नहीं होगी, उसमें कोई आप तब्दीली नहीं कर पाएंगे। आप अपने फ़ोटोग्राफ्स देख लें, फिंगर प्रिंट्स देख लें, सिग्नेचर देख लें, सही तरह से अपलोड हुई है या नहीं हुई है। हेज़ी फ़ोटोज़ अपलोड नहीं होने चाहिए। 10th के सर्टिफिकेट्स देख लें, PWD के सर्टिफिकेट देख लें। पार्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड। अब आपको अपनी चेकलिस्ट करनी है कि आपने ये सब डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें आपने ठीक से वेरीफाइली काइंडली आपने अपलोड किया है या नहीं। माई नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वेश्चन पेपर मीडियम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फादर्स नेम, जेंडर, एग्जामिनेशन सेंटर, डॉक्यूमेंट अपलोड्स, मदर नेम, कैटेगरी, एजुकेशनल डिटेल्स, वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपकी आती है वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर की और ईमेल आईडी की। आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई, एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। अब आती है फ़ी और पेमेंट की। तो आपको सबसे पहले अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देना है, सिक्योरिटी पिन देना है। उसके बाद सबमिट करने के बाद आपको एक OTP आएगी। OTP आपके ईमेल में आएगी। OTP को ईमेल को वेरीफाई करने के लिए OTP आएगी और उसके बाद आप उसको वेरीफाई करने के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आप किसी भी मोड से कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और चालान के द्वारा भी आप पेमेंट अपना कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। SBI मोड हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, HDFC हो गया, पेटीएम पेमेंट गेटवे हो गया। इन 5 में ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आप सेलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आपका एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को प्रिंट आउट करके इस तरह से आपका फॉर्म NEET UG फॉर्म सबमिटेड हो जाएगा सक्सेसफुली।